Good morning, students. Today we shall discuss some theorems on Euclidean ring. First theorem is let R be an Euclidean ring and AB be two non-zero elements of R. Then if B is a unit in R, then D value of AB equal to D value of A. And second, if B is not a unit in R, then D value of AB is greater than D of A. Now by definition of Euclidean ring, D value of A is less than equal to D value of AB. If B is a unit in R, then B inverse exists. तो हम A को लिख सकते हैं A into B inverse. This implies D value of A equal to DAB into B inverse. Now by definition of Euclidean ring, D value of AB into B inverse बड़ा होगा D value of AB से. This implies D value of A बड़ा है D value of AB से. अब D value of A AB से छोटा, D value of A is greater than D value of AB, तो इसका मतलब D value of AB equal to D value of A. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं. इफ B is not a unit of R, then AB be non-zero element of R, then AB is also a non-zero element of R. Now since R is free from divisor, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास AB belongs to R implies there exist Q and R such that A is equal to Q into AB plus R. ठीक है. This implies either R is equal to 0 or D value of R is less than D value of AB. If R is equal to 0 तो A हमारा क्या हो जाएगा A equal to Q into AB. This implies A minus Q AB equal to 0. This implies distributive law से A into 1 minus Q B is equal to 0. बट A 0 है नहीं तो 1 माइनस क्या हो B इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज क्यू बी इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज B इज इन्वर्टिबल मीन्स B यूनिट है क्योंकि B का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. B को Q से मल्टीप्लाई करने पे 1 है. बट B इज नॉट ए यूनिट इन R. दिस इम्प्लाइज दिस इज ए कंट्राडिक्शन. देयरफॉर R इज नॉट इक्वल टू 0. दस वी हैव D वैल्यू ऑफ R इज लेस देन D वैल्यू ऑफ AB. नाउ R इज इक्वल टू A माइनस क्यू ए बी. ए कॉमन ले लो या डिस्ट्रीब्यूटिव ला कह सकते हैं हम. A into 1 minus QB. तो D value of R equal to D value of A 1 minus QB. Then by definition of Euclidean ring, D value of A is less than D value of A 1 minus QB. यानी कि D value of A is less than equal to D value of R. Therefore by 4 and 5, D value of A is greater than D value of AB is greater than D value of A. यही हमें शो करना था. ठीक है. Now next theorem is show that an element A in an Euclidean ring R is a unit if and only if D value of A is equal to 1. कि कोई भी एलिमेंट है वो यूनिट होगा अगर उसकी D वैल्यू ऑफ A है वो D वैल्यू ऑफ 1 के बराबर होगी. लेट अस सॉल्व दिस. लेट A be an element in Euclidean ring such that A is a unit in R. Since A is unit in R, therefore A inverse exists. Then A into A inverse हमारा क्या हो जाएगा 1. Then D value of A is less than D value of A into A inverse. यानी कि D value of A is less than equal to D value of 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. Also D value of 1 is less than D value of 1 into A by definition of Euclidean ring. So D value of 1 is less than equal to D value of A. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. तो by 1 and 2 हमारे पास क्या आ गई D value of A is equal to D value of 1. ठीक है. नाउ वी हैव टू शो दैट A इज ए यूनिट इन R. A भी A यूनिट है हमारा. इफ पॉसिबल कन्वर्स पार्ट करते क्योंकि हमें इफ एंड ओनली इफ दिखाना है और D वैल्यू ऑफ A इक्वल टू D वैल्यू ऑफ 1 मान लिया हमने. सपोज करो A इज नॉट ए यूनिट इन R, देन बाय अबव थ्योरम D वैल्यू ऑफ 1 into A इज ग्रेटर देन D वैल्यू ऑफ 1. दैट इज D वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन D ऑफ 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन. हैंस A इज ए यूनिट ऑफ R. ठीक है. क्योंकि D वैल्यू ऑफ A इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू D वैल्यू ऑफ 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थ्योरम ये ध्यान से देखना. लेट A एंड B बी आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग R. देन A एंड B हैव ए GCD D सच दैट D इज इक्वल टू MA प्लस NB फॉर सम MN बिलोंग्स टू R. या फिर इसको हम और कैसे स्टेट कर सकते हैं. लेट R बी ए यूक्लिडियन रिंग देन एनी टू एलिमेंट्स A एंड B इन R हैव ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है. अगर हम यूक्लिडियन रिंग की बात करते हैं तो दो एलिमेंट है कोई भी A B R के तो उनका एक GCD जरूर एग्जिस्ट करेगा. तो उसके लिए लेट अस
कंसीडर एस इज इक्वल टू आर ए प्लस एस बी टाइप के एलिमेंट मान ले वेयर आर एस बिलोंग्स टू आर। पहले तो हम ये दिखाते हैं कि एस इज एन आइडियल ऑफ आर। तो आइडियल की कंडीशन सबको ही पता है, दो एलिमेंट लेके चलने एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, तो एक्स माइनस वाई किसको बिलोंग दिखाना है, एस को। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट एस का लेना, दूसरा एलिमेंट आर का लेना, तो उनकी प्रोडक्ट किस में दिखानी है, एस में। तो पहले कंडीशन दिखाते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। तो एक्स वाई एस के है, तो एक्स किस टाइप का होगा, आर वन ए प्लस एस वन बी टाइप का, और वाई क्या होगा, आर टू ए प्लस एस टू बी टाइप का। देन एक्स माइनस वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू ए प्लस एस वन माइनस एस टू बी। अब ये आर वन माइनस आर टू बी आर को बिलोंग कर रहा है, एस वन माइनस एस टू बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई किसको बिलोंग कर गया, एस को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, लेट आर बी एन इट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, देन एंड एक्स बिलोंग्स टू एस, देन आर एक्स क्या हो जाएगा, आर इंटू आर वन ए प्लस एस वन बी विच इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आर आर वन ए प्लस आर एस वन बी। अब आर आर वन बी आर का और आर एस वन बी आर का, तो आर एक्स ये सारा एलिमेंट किसका हो गया, एस का, क्योंकि एस में एक एलिमेंट आर का इंटू ए प्लस एक एलिमेंट आर का इंटू बी किस में है, एस में। तो आर एक्स किसको चला गया, एस को। तो इसका मतलब आर एक्स इज इक्वल टू एक्स आर एस को बिलोंग कर गया, क्योंकि आर कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब ये आइडियल होगी। तो एस हमारी आइडियल तो होगी। ये हमने क्यों प्रूव करा, अभी हम दिखाते हैं। हम एक एलिमेंट मानते हैं डी बिलोंग्स टू एक्स, तो डी किस टाइप का होगा, एम ए प्लस एन बी फॉर सम एम एन बिलोंग्स टू आर। ऑल्सो ए को मैं वन इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी लिख सकती हूँ, तो ए एस को बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली बी बी एस को बिलोंग कर रहा है। नाउ ए बी बिलोंग्स टू एस एंड एस इज जनरेटेड बाय डी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू डी लैम्डा। एस इज जनरेटेड बाय डी हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एस है जो वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है आर की। प्रिंसिपल आइडियल, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग की हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होती है, ये हमने अभी पीछे लास्ट वीडियो में किया था। तो एस में प्रिंसिपल आइडियल होगी तो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी, वो मैंने मान लिया डी से। ठीक है, तो डी मैंने मान लिया डी एस का है, तो एम ए प्लस एन बी टाइप का होगा। तो एस डी से जनरेट हो रही है, तो ए बी डी इंटू समथिंग होगा और बी बी डी इंटू समथिंग होगा। तो ए डी इंटू लैम्डा और बी है डी इंटू म्यू, और लैम्डा में बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी जीसीडी वाली ना। नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या लेके चलते हैं हम मान लेते हैं सी ए को डिवाइड कर रहा है सी बी को, तो हमें शो करना है सी डी को भी डिवाइड करेगा। अब सी ए को डिवाइड कर रहा है तो सी एम ए को भी डिवाइड करेगा और सी एन बी को भी। जब सी एम ए को डिवाइड कर रहा है, एन ए को डिवाइड कर रहा है, तो सी एम ए प्लस एन बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब सी किसको डिवाइड कर रहा है, डी को। इसका मतलब तो जी सी डी वाली दोनों कंडीशन होगी क्या, डी डिवाइड से डी डिवाइड्स बी। और सेकेंडली कंडीशन है अगर सी ए को डिवाइड करता है सी बी को डिवाइड करता है तो सी डी को भी डिवाइड करना चाहिए, वो भी कंडीशन होल्ड होगी। इसका मतलब डी इज ए जी सी डी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज let a b c be arbitrary element of an Euclidean ring R, and if gcd of a b equal to 1 then a divides bc then a divides c। ये आपने नंबर थ्योरी में सारे रिजल्ट कर रखे हैं, लेकिन ये आपने कर रखे हम रियल नंबर आर पे। हम यूक्लिडियन रिंग के लिए ये सारे रिजल्ट प्रूव कर रहे, तो हमें शो करना अगर ए बी का जीसीडी 1 है और ए बी सी को डिवाइड कर रहा है देन ए सी को डिवाइड करेगा। क्योंकि देखो ए बी जी का जी सी डी 1 है तो ए बी को तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। लेट अस सॉल्व दिस। सिंस जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 देन बाय अबाउ थ्योरम 1 इज इक्वल टू किस फॉर्म का होगा, एम ए प्लस एन बी टाइप का। अब दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हो, एम ए सी प्लस एन बी सी इज इक्वल टू सी। नाउ सिंस ए डिवाइड्स बी सी, तो बी सी क्या होगा, ए का कोई ना कोई मल्टीपल, यानी कि बी सी इक्वल टू ए टी फॉर सम टी बिलोंग्स टू आर। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ बी सी इन 1, बी सी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एम ए सी प्लस एन ए टी इक्वल टू सी। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए को मना गया, एम सी प्लस एन टी इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब एन सी प्लस एन टी सारे किसको बिलोंग करे, आर को। दिस इंप्लाइज सी क्या है, ए का कोई ना कोई मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ए डिवाइड्स सी विच प्रूव्स द थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज if R is a principal ideal domain then any two non-zero elements AB belonging to R have a LCM। जैसे अभी हमने GCD का क्वेश्चन किया था, अब हमें ये शो करना है कि दो एलिमेंट हो गए तो उनका LCM भी एग्जिस्ट करेगा। लेट
एस क्या है, आर हमारी क्या है, प्रिंसिपल आइडियल। लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ आर। तो आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो आर की जो भी आइडियल लेंगे वो क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका मतलब हमने मान लिया लेट एस इज जनरेटेड बाय ए और टी इज जनरेटेड बाय बी। तो ये दो आइडियल मान ली। देन एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर, ये हमने पहले रिजल्ट किया है। और एस इंटरसेक्शन टी भी किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी, तो वो मैंने मान लिया लेट एस इंटरसेक्शन टी इज जनरेटेड बाय एल। ऑल्सो एस इंटरसेक्शन टी एस के अंदर कंटेन है, एस इंटरसेक्शन टी टी के अंदर कंटेन है। तो एल इस आइडियल का है, एस इंटरसेक्शन मतलब जनरेटेड बाय एल है, तो एल किस में कंटेन हो गया, एस में। लेकिन एस के एलिमेंट किस टाइप के है, एक के मल्टीपल टाइप में है, तो एल क्या होगा, ए एक्स टाइप का। इसी तरह एल का यानी कि एस इंटरसेक्शन टी का, एस इंटरसेक्शन टी में है और टी के एलिमेंट कैसे हैं, बी के मल्टीपल की फॉर्म में, तो एल किस टाइप का होगा, बी वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब एल ए का मल्टीपल, इसी तरह एल बी का ही मल्टीपल। इसका मतलब ए बी एल को डिवाइड करा और बी बी एल को डिवाइड करा। तो फर्स्ट कंडीशन तो आ गई एलसीएम की। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, हम मान के चलते लेट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, तो हमें शो करना है एल डिवाइड सी। उसके लिए सिंस ए डिवाइड सी, तो सी ए का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। इसी तरह बी डिवाइड सी, तो सी बी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वेयर यू वी बिलोंग्स टू आर। अब सी ए का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो सी किसको बिलोंग कर गया, आइडियल जनरेटेड बाय ए। इसी तरह सी किसको बिलोंग कर गया, आइडियल जनरेटेड बाय बी। यानी कि यहाँ से सी एस को बिलोंग कर गया, यहाँ से सी टी को। अब सी एस को भी कर गया, टी को भी, तो सी किसको कर गया, इंटरसेक्शन को। और इंटरसेक्शन क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय एल, तो सी किसको बिलोंग कर गया, आइडियल जनरेटेड बाय एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी किस टाइप का हो गया, लैम्डा इंटू एल टाइप का। दिस इंप्लाइज लैम्डा डिवाइड्स, सॉरी एल डिवाइड्स, क्योंकि सी एल का कोई ना कोई मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब एल डिवाइड्स सी। इसका मतलब दोनों कंडीशन एलसीएम की सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब एल क्या है, ए और बी का एलसीएम, यही हमें शो करना था। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितनी भी थ्योरम्स है वो करनी है और इनको ध्यान से देखना है। थैंक यू।